नमस्ते। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेंडर रोल्स के बारे में। सरल शब्दों में जेंडर रोल्स होते हैं ऐसे स्टैंडर्ड्स या एक्सपेक्टेशंस जो हमें बताते हैं कि औरतों और मर्दों को समाज में अपने जेंडर को ध्यान में रख के कैसा व्यवहार करना चाहिए। जेंडर रोल्स हमारी जिंदगी के कई हिस्सों को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं, किस टाइप की रिलेशनशिप्स में आते हैं, कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ तक कि ये भी कि हम कौन सा प्रोफेशन चूज करते हैं। So the thing is that I was at an all-boys school. I had an art teacher who had a peculiar way of walking. Being an art teacher and being effeminate in nature made him the subject of mockery and ridicule from my class. Seniors, juniors, सबको मान लो। तो लोग कहते थे कि अरे छक्का है ये, and they would even mock him privately for the way he walked, or even for that matter the way he talked. And because of the way he behaved or his mannerisms, it became very difficult for students to join his class. क्योंकि वो ज्वाइन करते थे तो क्लास के बाद जब वो हॉस्टल आते थे, they would become the subject of ridicule and mockery from their classmates, their hostel mates. वो कहते थे कि अच्छा होगी क्लास तेरी छक्के के साथ। जब आप बड़े हो रहे थे तब आपको कैसे जेंडर रोल सिखाए गए थे, इस बात पर रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है। Pues se supone que las mujeres en nuestra cultura no deben verse tan ansiosas ante un hombre o ante una proposición de salir, porque ese es el trabajo del hombre, mostrar interés por eso. En la familia, el hombre debería ser el líder en que hace cumplir las reglas y normas de la casa. As soon as I hit my mid-20s, I started getting pressurized by my family and the society at large to get married. And why so? Because according to them, the biological clock for a woman starts ticking. And the moment she hits 30, it gets difficult for her to get pregnant. That's what they believed. बचपन से I have had a fondness for dancing. Now I have two left feet. I'm a horrible dancer, but I enjoyed dancing nonetheless. तो दोस्तों के साथ जब मैं बैठा करता था और हंसी मजाक में या पासिंग में I would happen to mention that oh I like dancing. Oh, or you know, I like Hrithik Roshan because he's an amazing dancer. Or I'm thinking of joining Shamak Davar's classes or something. I would be ridiculed. I would be mocked. तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे. उसकी वजह से I would lash out at them और हाथापाई हो जाती थी. लड़ाई झगड़े होते थे. I would come home with torn clothes and whatever only because my friends made fun of me wanting to dance, and that made me really fearful. I was bullied because of things I wanted to do, because of hobbies I wanted to take up, and as a result I became really fearful about my own choices, about things that made me happy. और मैंने आज तक 32 साल का हो गया हूँ, आज तक I haven't attended a single dance class anywhere in the world, only because I fear being mocked, I fear being ridiculed. क्योंकि बचपन में मेरे दोस्त मुझे बोला करते थे लड़के थोड़ी नाचते, and that stayed with me ever since. पिछले कुछ सालों में हमारे समाज में सिखाए जा रहे जेंडर रोल्स में बहुत बदलाव आए हैं, लेकिन आज भी औरतों को ज्यादातर प्राइवेट स्फेयर में रखा जाता है और मर्दों को पब्लिक स्फेयर में। लेकिन क्यों? हम सब अपॉर्चुनिटीज पर इक्वल एक्सेस के हकदार हैं, लेकिन जेंडर से जुड़ी रूढ़िवादी सोच की वजह से लाखों लोग, चाहे वो मर्द हो या औरत, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। आप हमें बताइए, नीचे कमेंट कीजिए कुछ ऐसे मैसेजेस जो आपको आपके जेंडर की वजह से दिए गए थे। Las buenas mujeres se visten de forma tradicional. Cuando juego fútbol, mis compañeros suelen decir que juegue como hombre, no como una niña. अरे बाल तो लंबे करो थोड़े से, लड़की दिखो। मर्द को दर्द नहीं होता। ये जेंडर नॉर्म्स कौन बनाता है? कहाँ से आते हैं ये? जो एग्जाम्पल्स हमने आज आपके साथ शेयर किए हैं उससे आप खुद समझ सकते हैं कि जेंडर नॉर्म्स खतरनाक ना होने के बावजूद भी हानिकारक हो सकते हैं। जैसे कि एक आम स्टीरियोटाइप ये है कि औरतों को नर्चरिंग मदर्स और केयर गिवर्स होना चाहिए। तो सुनने में ये बात बुरी नहीं लगती, बल्कि बहुत साधारण सी लगती है, लेकिन इसकी वजह से औरतों पर हद से ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन बढ़ जाता है। जेंडर नॉर्म्स का एक और कॉन्सिक्वेंस ये है कि मर्दों को भावुक होने पर नीचा दिखाया जाता है। चलिए गौर करते हैं जेंडर और इमोशंस के बीच के रिलेशनशिप पर। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम रिस्ट्रिक्टिव इमोशनैलिटी शब्द को समझें, जिसका मतलब होता है अपने जज्बात या भावनाएं जाहिर करने में मुश्किल या डर महसूस करना, या सही शब्द न ढूंढ पाना। Por razones hormonales y genéticas se piensa que los hombres se inhiben de expresar sus emociones de forma libre y espontánea. Sin embargo, algunos psicólogos rechazan que por el hecho de ser hombres de su género o su sexo, esto no pueda ser posible y no puedan expresar sus emociones de forma libre. दुख की बात तो ये है कि हमारे समाज में एक छोटे से नेचुरल डिफरेंस को इस हद तक मैनिपुलेट किया जाता है कि जब कोई मर्द इमोशनल सपोर्ट मांगता है या ढूंढता है, वो उसकी कमजोरी मान जाती है।
मर्दों का फर्ज होता है परिवार में प्रोवाइडर या प्रदाता का काम करना। ये एक और जेंडर नॉर्म है जो कि पूरे परिवार का फाइनेंशियल बर्डन सिर्फ मर्दों के सर पर डाल देता है। 2016 में की गई एक रिसर्च के हिसाब से औरतों के कंपैरिजन में मर्द 2 गुना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन महसूस करते हैं। WHO द्वारा की गई एक रिसर्च में ये पाया गया कि दुनिया में मर्दों की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियल स्ट्रेस। मुझे यकीन है कि हमारी तरह आपके लिए भी जेंडर नॉर्म्स का खात्मा करना बहुत बहुत जरूरी है। कैसे, हम आपको ये बताएंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप हमें कमेंट में बताइए आपके मन में पड़ रहे जेंडर नॉर्म्स आपने कब, कहां और कैसे सीखे। क्या ये जेंडर नॉर्म्स आपकी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं या आपके लाइफ चॉइसेस को लिमिट कर रहे हैं? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।